Assalamu alaikum, 5 class. Today we are going to start the new topic, that is the scattering of seed. Students, scattering of seed means to say कि seeds किस तरह से बिखर जाते हैं. प्लांट तो एक ही जगह पे होता है, लेकिन जो seeds होते हैं वो different place पे बिखर जाते हैं. How they scattered in the whole environment we will read in this topic. Seeds are formed in the flower of a plant. To germinate they need to make their way to the ground. Students, जो seed है it is formed inside the plant. वो plant के flower में बनता है, लेकिन for germination इसको new plant बनाने के लिए ground की ज़रूरत होती है, soil की ज़रूरत होती है. So however, because a plant can produce many seeds, the seeds don't just fall from their flower to the ground beneath them. Students, means to say that कि जो प्लांट है वो सीड को बनाता है. ठीक है, तो क्या है कि जो सीड है वो जस्ट ऐसा ही नहीं है कि वो फ्लावर के नीचे ही गिरता है और वहीं पे बनाता है. इट्स स्कैटर्ड इन अदर वेज. वो मुख्तलिफ जगहों पे भी मुख्तलिफ प्लेसेस पे स्कैटर कर जाता है, बिखर जाता है. हाउ इट स्कैटर्ड? इट कैन स्कैटर विथ डिफरेंट वेज. If this happened, there would not enough space for nutrients for all the seeds to grow into a new plants. अगर ऐसा होता है कि सीड जो है उसी प्लांट के बीनीथ गिरता है और वो वहीं पे नए प्लांट्स बन जाते हैं, तो क्या होगा कि न्यू प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. न्यू प्लांट्स को सॉइल के अंदर से वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी जो एक प्लांट की ज़रूरत है. क्लियर? Nature wants every seed to have the best possible chance to survive. You know that it is a natural process that every plant has the best chance to survive. उसको एक बेहतरीन मौका चाहिए, बेहतरीन environment चाहिए survive करने के लिए. So seeds are scattered far and wide in several ways. Sometimes the makeup of the seed determines how they are scattered. Some seeds are sticky or have hooks or spikes. You know that you can see here, these are the seeds of a plant and these are sticky and have a hooks like a needle. ये needles की तरह के इनके seeds हैं. This means that when animals brush against them, they stick to the animals until they drop to the ground in a different place. इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी एनिमल के जिस्म से, बॉडी से चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, तो ये तब तक जो है एनिमल जो है इसको जब तक इसको उतार के फेंक नहीं देगा डिफरेंट प्लेसेस पे, ही इज़ नॉट इन ईजी पोजीशन. सो क्या होता है कि इस तरह से ये एनिमल्स के जब बॉडी पे लगता है तो एनिमल्स मूव करते हुए जब इसको उतारते हैं तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे बिखर जाता है. सो दिस इज़ वन वे हाउ टू स्कैटर द सीड. Some seeds grow in fruits, you know very well. Some seeds grow in food, just like mango, just like papaya. These are the seeds of papaya. You know that in mango there is a big one seed. The fruits is eaten by animals and the seeds are carried somewhere else inside the animal's body. You know that जब animals या human जो है वो खाते हैं फ्रूट्स को, तो क्या होता है कि वो अपनी बॉडी से जब रिलीज़ करते हैं सीड्स तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंच जाते हैं. दे कम आउट ऑफ द बॉडी इन एनिमल्स वेस्ट एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन द ग्राउंड. आफ्टर दैट द एनिमल्स वेस्ट मटीरियल scatter the seeds in the ground. Clear that? This is the second way. Now some seeds are very light, which means they are blown through the air, even the softest of breeze, just like dandelion seeds. You know that these are very light seeds. Have you seen? आपने अक्सर वो लाइट से इस तरह की वो देखी होंगी. दैट इज़ अ dandelion leaves. हैव यू सीन? और हम लोग जब कभी बाहर का मौसम होता है, हवा का मौसम होता है, तो इस तरह की छोटी छोटी से बहुत ज़्यादा ये उड़ रही होती है. तो ये कहते हैं हल्की सी ब्रीज से भी, हल्की सी हवा से भी ये जो है वो फिज़ा में स्कैटर कर जाती हैं और बहुत सी डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंच जाते हैं. सो नेक्स्ट वन. Seeds are not only light but also shaped like wings, which help them travel further through the air. Just like a maple tree seeds, these are the type of different shape. They have the different shape of just like a wings, and they can travel in different ways. Some plants produce heavy seeds, just like a sunflower seed, just like a coffee seeds.
So these plants do not produce many seeds, so they avoid the problem of too many seeds competing for a limited amount of space. So इनकी क्या होता है कि एक लिमिटेड स्पेस होती है कि ये बहुत ज़्यादा जगहों पे एनिमल्स के थ्रू, हवा के थ्रू कॉफ़ी के और सनफ्लावर के सीड्स तो नहीं जा सकते. सो ये जो है इनकी लिमिटेड प्लेस होता है जिसके ऊपर हम खुद उगाते हैं. क्लियर दैट? नाउ टर्न द सम सीड्स लिव इन सीड पॉट्स. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि सीड पॉट के अंदर होते हैं. इनके ऊपर एक कवर होता है जस्ट लाइक अ लपिन सीड, और यू कैन से दैट हम लोगों ने अगर पीस देखा हो, मटर देखा हो, तो उसके भी सीड्स उसके अंदर होते हैं. उसके अलावा जो है हमारे घरों में वो एक कुक होती है वेजिटेबल बीन्स, उनके भी जो सीड्स होते हैं वो सीड पॉट्स के अंदर होते हैं. दीज पॉट्स बर्स्ट सडनली एंड थ्रो द सीड्स आउट ओवर द लार्ज एरियाज. जब ये बर्स्ट करते हैं, फटते हैं, जब ये जो है ओवर ग्रोथ हो जाती है इनकी, तो ये सीड्स बर्स्ट कर जाते हैं और इस तरह से डिफरेंट जगह पे इनकी जो है वो स्कैट्रेशन हो जाती है. Some seeds float on water and are then washed ashore where they start growing. कुछ सीड्स जो ऐसे होते हैं जो वाटर के ऊपर तैर सकते हैं. They can float on the water. The biggest and ज़बरदस्त example of this is a coconut seed because it is a large seed and heaviest seed. You know that coconut always mostly are we see on the जो है हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो समंदर वाली साइड पे होते हैं, सी साइड्स पे होते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा ये नज़र आते हैं. अ कोकोनट इज़ अ सीड. In fact, it is the largest seed in the plant kingdom. How do you know why they have a lot of air inside them? इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनको एयर कहाँ से होती है जो इनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है. वेयर कहाँ से वो इतनी हवा जो है किस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. यू कैन सी देयर इज़ अ एग्जाम्पल. दीज आर द seeds of coconut and this one is a largest seed in plant kingdom. So it is so that they can float. Coconut often travel hundreds or even thousands of kilometers on water until they find a new place to take the root. The hard shell protect them on the long journey. You know that जो coconut seed होता है वो 100 किलोमीटर्स जो है वो फ्लॉट कर सकता है, तैर सकता है. तो ये क्या होता है कि झील या इस तरह के पानी वाली जगह पे क्या होता है कि ये फ्लॉट कर जाता है. जहाँ पे इसको जो है वो ज़मीन सॉयल नज़र आती है वहाँ पे ये स्टे करता है एंड देन अपने रूट्स को वहाँ पे जो है पौधा जो है वो उगा लेता है, जर्मिनेशन करता है. क्या स्टूडेंट, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे एंड द टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, हाउ द स्कैटर्ड एंड हाउ दे grow the germinate the new plants. So learn it very carefully. Related questions are given on your notes. Learn them very carefully. Thank you so much.